Yes, Manya. Sir, I was muted, sorry. Okay, I have unmuted you again. Now don't mute yourself. Okay, do you remember what we discussed in the previous class? Yes, sir, sources of recruitment. And we had started discussing selection process. What is the first step in selection process? Preliminary screening. Okay, which can be done in two ways, either by asking the candidates to send their resume, their applications, or through walk-in interviews. And second way is walk-in interviews. Okay. Second step, we were discussing selection tests. And in selection tests, we discussed the first one was intelligence tests. Remember? Yes, sir. ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एक बार फिर से करते हैं. एक ये सीरीज 3 1 3 7 15, so next number should be 31. Why? Because पहले दो नंबर्स में 2 का गैप है, then the gap of 4, then gap of 8, so next gap will be of 16. ठीक है, the gap is doubling up. इसमें हमने डिस्कस किया था एक ये अल्फाबेटिकल सीरीज ब्लैंक में क्या आना चाहिए? T. T. Why T? There are 4 letters between every. Yes, gap of 4, or we can say 5th alphabet is E, 10th is J, 15th is O, so 20th will be T and 25th is Y. Then we also discussed this one. Yes, sir. Roman 9 है, इसको 6 बनाना है. कैसे बनाएंगे? We can put S in front of Yes. I and S. उसके आगे बस S लिख दिया तो वो बन गया 6. ठीक है. अब एक दो क्वेश्चन और ऐसे डिस्कस करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के. कैन यू रीड दिस? Draw 3 straight lines with same origin such that each circle is touched by a line. ये 9 सर्कल्स हैं. You have to draw 3 lines in such a way that the origin of the 3 lines is same, but each circle should be touched by at least one line. Try it. I'll tell the answer after 1 minute. You can try in your notebooks, and if anyone is able to solve it, you can click on raise hand. We'll discuss. Okay, shall I tell the answer? First line, second line, and third line. 3 straight lines are there, all having the same origin over here, and each circle is touched by at least one line. ठीक है. अब इसमें अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं लोग, तो क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हैं? कैन यू गेस? Because we start from one of the circles. Yes, because जब आपको ये फिगर एक दे दी जाती है तो ज्यादातर क्या होता है, हमारा दिमाग एक इनविजिबल बाउंड्री क्रिएट कर लेता है.
हम उसी बाउंड्री के अंदर अंदर इस फिगर की बाउंड्रीज के अंदर अंदर ही सॉल्यूशन सोचते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक. क्या कहते हैं इसे? मेंटल ब्लॉक. ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. ये एक इंटेलिजेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मेंटल ब्लॉक. ज्यादातर लोग एक गिवन सिचुएशन को बहुत लिमिटेड पर्सपेक्टिव में सोचते हैं, ठीक है, और कई बार उसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन उस बाउंड्री के बाहर होता है. तो ये ब्लॉक अगर हम हटा दें अपने माइंड से, जो इस फिगर में कहीं नहीं था, कोई बाउंड्रीज नहीं है. मैं क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा कि आपको इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहना है. द सॉल्यूशन लाइज आउटसाइड, आउट ऑफ दिस बॉक्स, इनविजिबल बॉक्स दैट वी क्रिएटेड इन आवर माइंड. ठीक है, इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. सुना है ये फ्रेज कभी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग? Yes. जो रूटीन से हटकर कुछ सोच सकता है उसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो ये कैपेबिलिटी जिनमें होती है वो इस सॉल्यूशन की तरफ इजीली बढ़ पाते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. So we should try to develop this ability of thinking out of the box. सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं, कई बार बाद में सॉल्यूशन देख के लगता है अरे यार ये तो इतना सिंपल था, पहले क्यों नहीं सोचा हमने. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की कि हम अपनी थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, उसे थोड़ा सा बाहर एक्सपैंड होने दें. ओके, नाउ लेट्स लुक एट अनदर वन. पढ़ो जरा कुछ क्या लिखा है इसमें. Draw 4 straight lines without lifting pen or pencil such that each dot is touched by a line. Is the question clear? 4 straight lines without lifting the pen or pencil. एक बार ड्रॉ करनी शुरू कर दी तो बीच में पेन या पेंसिल उठाना नहीं है. Such that each dot is touched by a line. Try this. Again, I give you 1 minute. हुआ किसी से सॉल्व? नहीं. ओके, लेट मी शो यू द आंसर. फर्स्ट लाइन continued from there, second line continued from there, third line, and continued from the end of third line, the fourth line. 4 straight lines में ज्वाइन हो गए सारे डॉट्स. Yes, sir. ठीक है, अगेन यहां पर वही कॉन्सेप्ट था मेंटल ब्लॉक वाला. फर्स्ट लाइन को आप थोड़ा ध्यान दो तो थोड़ा सा हम फिगर से बाहर गए तो सॉल्यूशन निकल आया. ज्यादातर लोग उसी फिगर के बीच में घूमते रहते हैं तो सॉल्यूशन वहां पे नहीं मिल पाता. ठीक है, ओके, दीज वर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्वेश्चंस. नाउ वी कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट्स. सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट्स आर एप्टीट्यूड टेस्ट्स, used to measure a candidate's potential to learn particular skills and his her potential abilities. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा sometimes when a young child breaks a toy and then again tries to rejoin it, तो जनरली पेरेंट्स या बड़े लोग देख के क्या करते हैं, क्या कहते हैं बड़ा होके? इंजीनियर बनेगा. हाँ, यस, इंजीनियर बनेगा. क्यों? क्योंकि इंजीनियर का काम क्या होता है, किसी चीज के स्ट्रक्चर को समझना.
तो वो अगर टॉय को तोड़कर वापस ज्वाइन कर सकता है, जोड़ सकता है, इसका मतलब उसने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया, उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसकी एबिलिटी है. दैट इज एप्टीट्यूड. So aptitude tests are used to measure the candidate's potential to learn skills of a particular type which are required in that job. Third is interest tests, used to find out the preference of an individual for a certain type of work. कि जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहा है उसका इंटरेस्ट भी है उस जॉब में या नहीं. कहीं वो बिना इंटरेस्ट के और किसी रीजन से अगर उस जॉब में आ रहा है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, मन लगा के काम नहीं कर पाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं है वो. सो सर एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट में भी तो हम उसका पोटेंशियल ही देखते हैं. यस, पोटेंशियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी. फोकस इज मोर ऑन एबिलिटी. ठीक है. अब किसी को आप कितना भी कुछ लोग होते हैं उनको कितना भी कोशिश कर लो समझाने की, उन्हें स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता किसी चीज का. ठीक है. तो वो इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए सुटेबल नहीं है, उनका एप्टीट्यूड नहीं है. इंटरेस्ट हो सकता है, हो मन हो उनका इंजीनियरिंग करने का, लेकिन एबिलिटी नहीं है. तो एप्टीट्यूड इज रिलेटेड मोर विद एबिलिटी, ऑल्दो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, बट फोकस इज मोर ऑन एबिलिटी. क्लियर? ओके सर. एक और एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज आप बहुत इंटरेस्टेड हो डॉक्टर बनने में, तो आपका इंटरेस्ट है डॉक्टर की जॉब में, लेकिन जैसे ही आप ब्लड देखते हो आप फेंट हो जाते हो. तो एप्टीट्यूड नहीं है, क्योंकि इन अ डॉक्टर्स जॉब तो आपको बहुत बार लोगों के वुंड्स देखने पड़ेंगे और सर्जरीज देखनी पड़ेंगी, और वाइल लर्निंग दी मेडिकल साइंस तो बहुत सारे आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाएंगे जिसमें ब्लड इन्वॉल्व होगा. सो इंटरेस्ट होते हुए भी एप्टीट्यूड नहीं है. क्लियर? सो बोथ आर इंपॉर्टेंट. यस सर. नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट्स. Personality tests are used to find out the personality of the candidate. Emotional balance, value system. ठीक है. इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है. अगर कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है या बहुत जल्दी हैप्पी हो जाता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है. कुछ लोग होते हैं ना, और बहुत जल्दी एकदम उछलने लग जाएंगे, सेलिब्रेट करने लग जाएंगे, और बहुत जल्दी उदास हो जाएंगे, बहुत जल्दी रोने लग जाएंगे. तो इसका मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल बैलेंस नहीं है. ठीक है. तो ऐसे लोग कंसंट्रेशन के साथ कोई काम करना उनके लिए मुश्किल होता है. इमोशनल होना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है. इमोशनल होना हमारी ह्यूमैनिटी की पहचान है. द मोर इमोशनल अ पर्सन इज, द मोर ह्यूमन अ पर्सन इज. बट along with being emotional, we also need to have a control over our emotions. We need to have a balance कि अगर थोड़ी टेंस सिचुएशन भी है तो हम उससे ज्यादा परेशान ना हो, सॉल्यूशन पे फोकस करें. अगर बहुत खुशी की कोई बात है तो हम ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं, उसमें भी हम नॉर्मल रहें. ठीक है. दैट काइंड ऑफ इमोशनल बैलेंस जिनमें स्ट्रांग होता है, इमोशनल बैलेंस, वो किसी भी काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ओवर एक्साइटमेंट या ओवर डिप्रेशन से अफेक्ट नहीं होती फ्रीक्वेंटली. क्लियर? यस सर. आपने नोटिस किया होगा कि क्लास में भी जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम्स और सेलिब्रेशंस वगैरह उनकी लाइफ में भी चलती रहती हैं, लेकिन जनरली वी ट्राई नॉट टू लेट दोज थिंग्स अफेक्ट आवर टीचिंग. तो टीचिंग में उसका इफेक्ट Yes, sir. नहीं आना चाहिए. अगर वो आने लग जाएगा तो फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो हर जॉब में ये चीज है, इमोशनल बैलेंस. वैल्यू सिस्टम, अगर कोई किसी का वैल्यू सिस्टम वीक है तो वो करप्ट होगा तो चीटिंग करेगा, काम ठीक से नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएगा. ऑन द अदर हैंड किसी का वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ट्रूथफुलनेस है, that person will do the job with full sincerity and honesty. Maturity. What is this maturity? क्या मतलब होता है इसका?
When decisions are taken accordingly. Very good. Decision making on the basis of rational thinking, on the basis of proper reasoning. जो लोग जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं या रिस्पॉन्ड कर जाते हैं बिना सोचे समझे, मीन्स दे आर इमैच्योर. लेकिन जो लोग सोच समझ के रिएक्ट करते हैं, सोच समझ के वेल थॉट रिस्पॉन्ड करते हैं. रिएक्शन और रिस्पॉन्स में यही फर्क होता है. रिएक्शन होता है इमीडिएट, मोस्टली बिना सोचे. Response after thinking. रिस्पॉन्स होता है थॉटफुल, आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली. ठीक है, तो मैच्योर लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, और उनमें इमोशनल बैलेंस भी होता है. ठीक है, छोटी छोटी बातों पे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं छोटी मोटी चीजों को. देन टेम्परामेंट. टेम्परामेंट मीन्स Anger. एंगर. अगर किसी को जल्दी गुस्सा आ जाता है तो हम उसे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड. तो अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात है. बुरी बात है, क्योंकि जब Decision making affect होती है. वेरी गुड, क्योंकि जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारा माइंड क्लियरली सोच ही नहीं सकता कुछ. हमारी रैशनल थिंकिंग की एबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है जिस टाइम हम गुस्से में होते हैं. जितना ज्यादा गुस्से में होते हैं उतनी ज्यादा वो हमारी रैशनल थिंकिंग की एबिलिटी कम हो जाती है. और उस टाइम हम जो भी फिर कहते हैं या करते हैं वो जनरली गलत होता है, वो वेल थॉट नहीं होता, वो प्रॉपर रीजनिंग पर, प्रॉपर लॉजिक पर बेस्ड नहीं होता. और बाद में फिर हम रिपेंट करते हैं, पछताते हैं कि नहीं मैंने क्यों ऐसा कह दिया गुस्से में, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, आई शुड नॉट हैव. बट बाय देन समटाइम्स इट इज वेरी लेट. सो शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं, अपने टेम्परामेंट पे भी कंट्रोल होना जरूरी है, गुस्से पर भी कंट्रोल होना जरूरी है. गुस्सा आए भी तो देयर आर टेक्निक्स. आप डीप ब्रीदिंग करो, उस टाइम बिल्कुल चुप हो जाओ जिस टाइम गुस्सा आ रहा है. उस टाइम कोशिश करो जब तक अर्जेंट ना हो तो कुछ बोलो नहीं, कुछ करो नहीं. गुस्सा शांत होने के बाद सोच समझ के आप रिस्पॉन्ड करो. ठीक है, सो इस तरह की चीजों को टेस्ट करने के लिए देयर आर पर्सनैलिटी टेस्ट्स. Then fifth type of tests are trade tests to check the knowledge and skill already achieved in a particular trade. For example, कोई accounting की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका accounting का टेस्ट ले लेंगे कि वो accounting कितने अच्छे से करनी आती है उसे या नहीं. ठीक है, if someone is applying for the job of computer operator तो उसका टाइपिंग की स्पीड का टेस्ट ले लेंगे कि कितनी स्पीड पर और विदाउट एरर, विदाउट मिस्टेक्स टाइप कर सकते हैं. लेट अस से 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स में हाउ मेनी वर्ड्स कैन दैट पर्सन टाइप एंड हाउ मेनी मिस्टेक्स डज दैट पर्सन मेक इन दैट टाइम, इन दैट टाइपिंग. तो ये होते हैं ट्रेड टेस्ट्स टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑलरेडी अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन. क्लियर? Yes, sir. टाइप ऑफ टेस्ट क्लियर है? Yes, sir. So next step in the selection process is employment interview. Mostly private jobs में interview तो जरूर होता है, गवर्नमेंट जॉब्स में कईयों में नहीं होता. ठीक है, कई जगह दोनों चीजें भी होती हैं, टेस्ट और इंटरव्यू. क्यों? बिकॉज किसी को भी आप अपॉइंट करने से पहले एटलीस्ट एक बार मिलना तो चाहोगे, क्वाइट नेचुरल. ठीक है, Yes, so what is employment interview? It is a formal in-depth conversation between the employer or some executives or experts on the behalf of employer. जरूरी नहीं है कंपनी का ओनर ही सबके इंटरव्यू ले, हो सकता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसके लिए रिक्रूटमेंट हो रही है उसके मैनेजर को कह दे कि आप इंटरव्यू ले लो. या हो सकता है sometimes outside experts are also called for taking interviews. ठीक है, so between the employer or a representative of employer, there may be one Okay. person taking the interview, there may be multiple persons taking the interview also, and the candidate. It is the most popular tool of selection. Mostly जगह ये तो होता ही है इंटरव्यू तो. ठीक है,
और इट इज अ वेरी गुड मीन्स, अगर इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूअर समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो विद इन 5 to 10 minutes of interview we can judge a lot about the candidate, many things. ठीक है, राइट। और ये आपको इसलिए एज अ इंटरव्यूअर भी आपको इस चीज को समझना जरूरी है, एज अ कैंडिडेट भी समझना जरूरी है। आप बहुत सी जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम जब होते हैं तो उसमें वाइवा होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरव्यू ओनली, तो उसमें भी ये काम आएंगे आपके। इंटरव्यूअर अगर समझदार है तो लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप, वो आप क्या क्या जज कर सकता है या कर सकती है। द मोमेंट द कैंडिडेट एंटर्स द रूम, कैंडिडेट ने अंदर आने से पहले परमिशन मांगी या नहीं मांगी, एटिकेट्स चेक हो गए पहले ही, ठीक है। फिर अंदर आते हुए डिड द कैंडिडेट बैंग द डोर लाउडली और डिड द कैंडिडेट हैंडल द डोर वेरी स्मूथली। इससे उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स चेक हो रही हैं कि वो नॉइजी है, जनरली केयरलेस है या केयरफुल है। उसके बाद इफ द कैंडिडेट इज सपोज बाइटिंग द नेल्स और द कैंडिडेट इज rubbing the fingers, means nervous, lack of confidence. On the other hand, if the candidate sits like this, shows arrogance, shows overconfidence, तो दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। जनरली कैंडिडेट, जब आप एज अ कैंडिडेट कहीं जा रहे हो, आप कंफर्टेबली चेयर पे बैठो, और चेयर पे बैठते हुए भी आवाज नहीं होनी चाहिए, चेयर की आवाज मिनिमम होनी चाहिए। चेयर को पीछे से थोड़ा सा उठाओ, पीछे ड्रैग करो, और बैठते हुए हैंडल, उसके हैंडल से पकड़ के थोड़ा सा आगे को ड्रैग कर लो उठा के, जिससे कि आवाज ना आए चेयर के मूवमेंट की ज्यादा, ठीक है। वो भी आपके कितने केयरफुल हो, कितने अच्छे एटिकेट्स हैं आपके, ये शो करता है। जाते ही कैंडिडेट ने इंटरव्यूअर को विश किया या नहीं, ये भी आप उसके मैनर्स दिखाता है, ठीक है, कर्टसी है या नहीं। जनरली खुद से नहीं बैठना चाहिए, वेट फॉर द इंटरव्यूअर टू आस्क यू टू सिट, ठीक है। पहले जाके आप सिर्फ खड़े हो और विश करो इंटरव्यूअर को, ठीक है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द इंटरव्यू विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ से सिट, प्लीज सिट, देन यू शुड से थैंक यू एंड यू शुड सिट विदाउट मेकिंग मच नॉइज। यू शुड सिट कंफर्टेबली, नॉट इन अ नर्वस मैनर, नॉट इन एन एरोगेंट मैनर, ऑल्सो कंफर्टेबली। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें जिनका आंसर आपको आता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो। जिसमें थोड़ा सा डाउट हो आपको, तो उसमें आप बोल दो आई थिंक करके आप अपना आंसर दो। इफ यू आर आस्क्ड आर यू नॉट श्योर, एडमिट दैट यस आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज लाइक दिस। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी ऑनेस्टी के साथ एडमिट करो आई डोंट नो, ठीक है। देयर इज नो हार्म। कोई भी इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कैंडिडेट को सारे आंसर आते होंगे। मोस्टली कैंडिडेट्स को सारे आंसर नहीं आते, जिनका बहुत अच्छा इंटरव्यू भी होता है वो भी 2-3 आंसर उनको नहीं आते होते, ठीक है। तो नो हार्म इन दैट। अगर कोई आंसर गलत आंसर दोगे तो वो ज्यादा खराब इंप्रेशन आपका क्रिएट करेगा, क्योंकि उससे इंटरव्यूअर को ये पता चलता है दैट इफ दिस पर्सन डज नॉट नो एनीथिंग, कल को काम करते हुए इसे अगर कुछ पता नहीं होगा तो ये किसी से पूछेगा नहीं, अपनी गलती नहीं, ये नहीं मानेगा कि मुझे नहीं आता, ये तो गलत तरीके से काम कर देगा, विच कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कैंडिडेट एडमिट करता है दैट आई डोंट नो, तो इंटरव्यूअर को पता चलता है ओके, जहां पे इसे नहीं पता, ऑनेस्टली एडमिट तो करता है नहीं पता, तो ये पूछ लेगा किसी से अगर नहीं कुछ आता होगा तो, लेकिन काम खराब नहीं करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, पंचुएशन, फ्लुएंसी इन स्पीकिंग, वोकैबुलरी, ठीक है। दूसरा, खड़े और बैठते हुए, अगर आप झुक के बैठते हो या खड़े होते हो, अगेन शोज वी कैन से, जैसे हम कहते हैं ना ढीली डाली सी पर्सनैलिटी है,
नॉट एन अट्रैक्टिव एंड अटेंटिव पर्सनैलिटी। एक अच्छी पर्सनैलिटी अगर आपको सोचनी है, बनानी है अपनी, तो विजुअलाइज करो किसी आर्मी पर्सन को, इमीडिएटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसी आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू शुड स्टैंड अटेंटिव, आपकी स्पाइन हर टाइम स्ट्रेट होनी चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए, ठीक है, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी नीज बेंड नहीं होनी चाहिए, एकदम सीधे खड़े होना चाहिए। सिमिलरली जब आप बैठे हो, इवन देन योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, पीठ आपकी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंपैक्ट करती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। एक थोड़ी सी स्माइल आपके फेस पे जनरली रहनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली किसी टेंस सिचुएशन में नहीं, ये नहीं कि कहीं किसी की डेथ हो गई है वहां पे आप स्माइल कर रहे हो जाके, दैट शुड नॉट हैपन, बट जनरली यू शुड ग्रीट पीपल विद अ स्माइल। एक थोड़ी स्माइल आपके फेस पे जनरली रहनी चाहिए, इट मेक्स योर पर्सनैलिटी प्लीजिंग, ठीक है। स्माइल के बारे में कहा जाता है, इट इज अ कर्व दैट सेट्स मेनी थिंग्स स्ट्रेट। So many things, and above all, apart from all these things, knowledge can also be judged. उससे जब क्वेश्चन पूछेंगे जनरल नॉलेज के या उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो उसकी नॉलेज भी जज कर सकते हैं। तो एक छोटे से 5-10 मिनट के इंटरव्यू में इतना सब कुछ जज किया जा सकता है कैंडिडेट के बारे में। कई कैंडिडेट मिस्टेक क्या करते हैं, सब कुछ ठीक जाता है, आराम से आए, विश किया, बिना नॉइज किए बैठे, लेकिन जाते हुए उन्हें लगता है अच्छा इंटरव्यू खत्म, तो वो जाते हुए दरवाजा बैंग करके चले जाते हैं। तो जब तक आप बाहर नहीं निकल गए तब तक, इनफैक्ट एवरी मूवमेंट यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ प्रॉपरली। क्लियर? Yes, sir. So interview is a very important step in selection process. Then comes references and background check. गवर्नमेंट जॉब्स में अगर कोई अप्लाई करता है तो गवर्नमेंट उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है। The police station of the area in which that person lives is asked to verify the details. तो पुलिस स्टेशन से पुलिसमैन go to that person's home, पता करते हैं कि वो एक्चुअली उसने एड्रेस ठीक दिया है या नहीं, कब से वहां पर रहते हैं, वो नेबर से भी बात करके जाते हैं, फैमिली मेंबर से भी बात करके जाते हैं, पता करते हैं कि कब से ये यहाँ पे रहते हैं, नेचर कैसी है, बिहेवियर कैसा है, और वो सारा अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर गवर्नमेंट को, कंसर्न्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सबमिट कर देते हैं। प्राइवेट जॉब्स में पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाई जा सकती है, बट जनरली द प्रोसीजर इज, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट है और कोई ज्यादा हाई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो कई बार रेफरेंस बैकग्राउंड चेक नहीं करते प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। लेकिन अगर किसी हाई पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। मैनेजरियल जॉब के लिए अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, एंड अगर कैंडिडेट बिलोंग करता है किसी दूसरी स्टेट को, तब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैकग्राउंड चेक करना, क्योंकि हो सकता है कई चीजें जो वो बता रहा हो, क्योंकि वो सेम स्टेट में नहीं है, तो कई चीजें गलत हो, तो इसलिए वेरीफाई करना और जरूरी हो जाता है। ऐसे में जनरली क्या करते हैं, कैंडिडेट से डिटेल्स मांगते हैं, प्रीवियस एम्प्लॉयर की डिटेल्स, ठीक है, कुछ किसी रेफरेंस टीचर्स, प्रिंसिपल वगैरह के फोन नंबर जो उसको जानते हो, ठीक है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का नंबर जो उन्हें जानते हो, और उनको कॉल करके, उनसे बात करके पता किया जाता है कि कैंडिडेट की नेचर कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सर, पर दूसरी स्टेट से आने वाले को मतलब इतना ज्यादा क्या बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत है, मतलब वो इतना क्या फेस कर सकता है? यस, जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सेम स्टेट में है, ठीक है, वहां पर झूठ बोलने या गलत इंफॉर्मेशन देने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप दिल्ली में ही एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने अपने जॉब एप्लीकेशन में लिखा हुआ है प्रीवियस एम्प्लॉयर कंपनी, तो एम्प्लॉय को पता है कि ये इजीली चेक कर सकते हैं। हो सकता है जानते ही हो दोनों एम्प्लॉयर एक दूसरे को, नहीं भी जानते हो तो इजीली चेक करवा सकते हैं वहां पे तो कभी भी।
लेकिन जब दूसरी स्टेट से कोई आ रहा है, सपोज से ज्वाइन किए हुए 1-2 साल हो गए, अब आप पता करना चाहो कि उसकी प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ डिटेल चाहिए, आपको कुछ डाउट हुआ है उस पर, तो अब 1-2 साल के बाद किसी दूसरी स्टेट में जाके पता करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सेम स्टेट में थोड़ा इजीली पता किया जा सकता है। तो इसलिए इफ द कैंडिडेट इज कमिंग फ्रॉम सम अदर स्टेट, तो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका बैकग्राउंड रेफरेंस चेक करना, ठीक है। प्लस अपनी स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के बारे में थोड़ा सा आइडिया भी होता है कई बार, नॉट ऑलवेज बट कई बार, अगर सेम फील्ड में है तो। लेकिन दूसरी स्टेट से कोई आ रहा है, जैसे अभी विकास दुबे का केस हुआ, तो अगर वो किसी दूसरी स्टेट में जाके कहीं पे जॉब करने लग जाता जहां पे लोग उसे जानते ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती थी ना। उसके डिस्ट्रिक्ट वाले तो उसे जानते हैं अच्छे से कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, दे विल नॉट गिव हिम जॉब। गेटिंग इट? यस सर। नेक्स्ट इज सिलेक्शन डिसीजन। अगर सारे स्टेप्स क्लियर कर लिए हैं कैंडिडेट ने, उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है, दैट वी फाइनली डिसाइड कि अब सपोज 4 लोग हैं जो सारे स्टेप्स क्लियर कर गए हैं अभी तक के, और हमें 2 को सेलेक्ट करना है, 2 वैकेंसीज हैं, तो उन 4 में से किन 2 को हम अपॉइंट करेंगे, किन 2 की वॉइस लैग कर रही है बीच में। ओके, कुछ कनेक्टिविटी इशू होगा, मे बी एट योर एंड और मे बी एट माई एंड, इंटरनेट इशू हो सकता है। एनीवेज, सो डिसीजन इज मेड कि फाइनली किसको वो जॉब हमने ऑफर करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। रूटीन टाइप की ऑफिस जॉब्स में ये जरूरी नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में कंपलसरी होता है सब जॉब्स के लिए। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी जाती है कैंडिडेट को कि वहां से आप चेकअप करा के आओ, जब वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे तब हम आपको जॉब देंगे। प्राइवेट सेक्टर में अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्मी की जॉब में, पुलिस की जॉब में, सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब में, ठीक है, जहां पे फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उन जॉब्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन जॉब्स में तो ऑर्गेनाइजेशंस देमसेल्व्स अरेंज फॉर प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स। बाकी प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी जॉब्स में द ऑर्गेनाइजेशंस गिव देयर एम्प्लॉइज एन ऑप्शन कि आप किसी भी डॉक्टर से एक फिटनेस सर्टिफिकेट लाके बस सबमिट कर दो दैट यू आर फिट टू डू दिस जॉब। क्लियर? यस सर। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जॉब ऑफर। जब रेफरेंस चेक भी हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, जरूरी नहीं है ये सारे स्टेप्स हर जॉब में हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। कुछ जॉब्स में कुछ स्टेप्स इनमें से हो सकता है नहीं भी हो, या कुछ और स्टेप्स भी हो। ग्रुप डिस्कशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वे ऑफ सेलेक्टिंग कई जॉब्स में, ठीक है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दोस डिटेल्स। तो फिर जिन कैंडिडेट्स को डिसाइड किया गया है कि हम फाइनली अपॉइंट करेंगे, दे आर गिवन अ जॉब ऑफर। जॉब ऑफर क्या होता है? एक लेटर होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, और कैंडिडेट को कहा जाता है कि अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है ऑफर तो आप साइन कर दो, ठीक है। अगर कैंडिडेट साइन कर देता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अदरवाइज एम्प्लॉय कहता है नहीं मुझे ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है, देन सम डिस्कशन इज डन विद द कैंडिडेट, और अगर म्यूचुअली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कुछ और एग्री हो जाता है तो उसके जॉब ऑफर को मॉडिफाई कर दिया जाता है, नहीं तो फिर वो जॉब ऑफर और किसी को दी जाती है, नेक्स्ट के बेस्ट कैंडिडेट को। क्लियर? यस सर। देन कम्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जॉब ऑफर अगर कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर ली, कई बार तो जॉब ऑफर में सारी डिटेल होती है, पूरा एग्रीमेंट होता है, तो उसने साइन किए, एम्प्लॉयर ने भी साइन किए, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और सर्विस एग्रीमेंट। अदरवाइज अगर जॉब ऑफर में कुछ ब्रीफ में दिया हुआ था तो उसके बाद अब डिटेल्ड एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बनता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, सैलरी, लीव, ज्वाइनिंग, प्लेस ऑफ प्लेसमेंट, लोकेशन, देन रेजिग्नेशन की क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, अलाउंसेस क्या क्या मिलेंगी, परक्विजिट्स क्या क्या मिलेंगे, सारी कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेल में लिखी होती हैं और उस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के साइन होते हैं। एक कॉपी उसकी एम्प्लॉय के पास रहती है और एक कॉपी एम्प्लॉयर के पास रहती है। क्लियर?
यस सर। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन से मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड है? लीगल मैनेज, डिसिप्लिन प्रिंसिपल। रिमेंबर डिसिप्लिन प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया था, बोथ एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई शुड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, यस। एनी डाउट एनीवन? ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।